طلب جب حد سے بڑھتی ہے تو کنواں پاس آتا ہے. یوں عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی عطا قبول ہے کہ ایسی ایسی شخصیتیں ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں. اب پروگرام اپنے آخری مرحلے میں ہے، دستار بندی ہونا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں کے لیے ایک اور بہت ہی اہم شخصیت حضرت مولانا مفتی عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم کے مایہ ناز محدث شیخ الحدیث شیخ ثانی شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کے فیض یافتہ بھی ہیں اور نسب سے بھی جڑے ہوئے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے ہم بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کریں گے کہ حضرت تھوڑی دیر اپنے نصائح عالیہ سے ہم سبوں کو مستفید فرمائیں. اب اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور حضرت صدر صاحب کا خطاب ہوگا. الحمدللہ صدر صاحب کی باکمال مقرر اور بہت ہی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، وہ باتیں سن کر کے اور دعا کے بعد آپ حضرات تشریف لے جائیں گے. رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. آج کی یہ بزم، یہ اجلاس عام، آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی نسبت پر نظر آ رہا ہے. آج وہ طلبہ کرام جنہوں نے قرآن کریم مکمل یاد کیا ان کی دستار باندھی جائے گی، یا وہ طلبہ جنہوں نے قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی مشق کی، جنہیں قرہ کہا جاتا ہے، ان کی بھی دستار بندی ہوگی. ابھی اس سے پہلے میرے محترم مولانا قرآن کریم کی فضیلت پر آپ حضرات کے سامنے بھی بہت ہی قیمتی باتیں پیش فرما رہے تھے. مجھے دعوت دی گئی، میں نے سوچا کیا بولوں، تو میرے ذہن میں سوال ہوا کہ قرآن کی اتنی فضیلت، اتنی عظمت کیوں؟ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی اہمیت، اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آخر یہ مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، وہ اس کے ایک لفظ کا معنی نہیں جانتے. ان سے الحمدللہ کی پوری صورت آپ چاہے آدھی نیند میں آدھے جاگتے وہ سن لیجیے، سنا دیں گے، لیکن الحمدللہ کی صورت کا آدھا ترجمہ بھی وہ پورا قرآن یاد کر کے بھی نہیں سنا سکتے. ہمارے گھر میں ماں بہنیں ہیں، ان کو بہت سی صورتیں یاد ہوتی ہیں. بڑے بوڑھے لوگ ہیں، ان کو بہت سی صورتیں یاد ہوتی ہیں، نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ان سے پوچھ لیا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی ہے، نہیں بتا پائیں گے. تو قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے درسگاہیں بنی ہیں، نظام ہے، مدرسے ہیں، اساتذہ ہیں. قرآن کا ایسا کیا مقام ہے، اس کی ایسی کیا وجہ ہے جس کو اتنی اہمیت حاصل ہے؟ اس کے لیے آپ ایک جملہ سن لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. عربی میں کہاوت ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام.
बादशाहों की जो बात होती है वो भी बातों में बादशाह होती है। तो कुरान करीम में किसी इंसान का, किसी फरिश्ते का, किसी पैगंबर का कलाम नहीं है, बल्कि ये कलाम रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला का कलाम है, जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कहा इन्ना अंज़लनाहु, ये हमने उतारा है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से उतारा गया। तो इस कुरान के मुकद्दस होने की, इस कुरान की काबिल अहमियत होने की जो वजह है वो ये है कि ये कुरान अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने खुद उतारा है पूरा कुरान, लौहे महफूज से आसमान दुनिया में उतारा गया, और आसमान दुनिया से थोड़ा थोड़ा करके 30 साल के अरसे में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। तो इसकी निस्बत जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, इसकी निस्बत कायनात के खालिक और मालिक से जुड़ी हुई है। और ये कुरान उतारा ही इसीलिए गया है ताकि हम इस कुरान के जरिए डायरेक्ट और बराह रास्त इस कुरान के मालिक और इस कुरान का, ये कुरान जिसका कलाम है, उससे जुड़ जाए, अल्लाह ताला को पहचान ले, वो खालिक है, वो मालिक है। अभी मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ खुद से, हम कुरान पढ़ते हैं, बड़ा मसला ये है कि हम कुरान समझते नहीं समझते कुरान। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी डॉक्टर हो जाए तो बड़ा इजाद है, ठीक है भाई, उसकी जरूरत है। कोई आदमी किसी ओहदे पर पहुंच जाए, उसका बड़ा इजाद है, ठीक है भाई, उसकी जरूरत है। लेकिन हम सारी जिंदगी कुरान पढ़ते हैं, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ की सूरत पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरत पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होता कि मौलाना साहब से, सदर साहब से बैठ जाए कि हजरत थोड़ा हमको समझाने दीजिए कि क्या कहा जाए। पूरी जिंदगी हो गुजर जाती है, हमें तौफीक नहीं होती कि हम समझे कि हमारा रब हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम नमाज की हालत में हैं, रुख अपना दुरुस्त किए हुए हैं, किबले की तरफ किए हुए हैं, नियत बांधे हुए हैं, नमाज के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जबान से दुआ निकल रही है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम अल्लाह से मांग क्या है। हम एक रस्म अदा कर रहे हैं, जैसे आदमी कोई भजन पढ़े, कोई गीत पढ़े और पढ़े जा रहा है, किसी तोती को आप कुछ याद करा दीजिए, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अब वो तोती बोलता रहेगा कि हाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उसे पता ही नहीं कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का क्या असर है। आज हमारे माशरे में कुरान को याद करने वाले और कुरान को पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमने अपने बचपन में देखा कि मस्जिदें खाली होती थी, तरावीह पढ़ाने वाले नहीं मिलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में और नेपाल, इस पूरे खित्ते में अक्सर जगहों पे तो यही हाल है कि बाकायदा तरतीब बनती है कि भाई इस साल तुम सुना लो, अगले साल तुम सुना लो। ये इतने हाफिज हो गए जो यकीनन इन मदारिस की मात है, इन मदारिस का पैदान। तो अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बहुत है, लेकिन आज जरूरत है कुरान के मफ़हूम को समझने की। अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है, उसको हम समझें कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि कुरान से डायरेक्ट हम लोग फायदा उठाने वाले बन जाए। वरना क्या बात है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में कमेटी बैठी, ये हुआ कि भाई मोहम्मद का किस्सा बहुत आगे बढ़ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इनका किस्सा लपेट दिया जाए, इनका खात्मा कर दिया जाए। इस वजह से आवाज आ रही है, थोड़ा थोड़ा काम करता भाई, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे।
इनका क्या किया जाए? ये तो अपना कुरान सुना रहे हैं और ऐसा सुना रहे हैं कि सुनने वाला आदमी पागल हो जा रहा है, इनके पीछे पीछे भाग जा रहा है। हजारों साल का हमारे बाप दादा का दीन और हमारे पुरखों का ये लाया हुआ तरीका, मोहम्मद का एक कलाम सुन लेता है, आदमी दीवाना हो जाता है। भाई कौन सा कलाम लेकर आए? इनका तो मामला ऐसा है कि इनका कुरान सुनकर, इनका कलाम सुनकर घर में पता चला कि बाप जो है ईमान ले आया, बेटा काफिर है, बेटा ईमान ले आया, बाप काफिर है, माँ ईमान ले आई है, बेटी काफिर है, बेटी ईमान ले आई, माँ काफिर है। ये हालत पूरे घर में तकबर मचा रखा है। लिहाजा इनका कुछ इंतजाम किया जाए। कि भाई न कुरान सुना जाए बल्कि कुरान के खिलाफ खड़े होकर शोर किया जाए ताकि कुरान न सुनना पड़े। इसलिए कि मोहम्मद जो कुरान पढ़ते हैं ऐसी उसके अंदर कशिश है। रिवायतों में आता है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में कुरान अपनी बैठक पर पढ़ते थे, मस्जिद में पढ़ते थे, बड़े बड़े काफिर, शदीद दुश्मन, सख्त तरीन दुश्मन अबू जहल, उत्बा, इस तरह के टाइप के बड़े बड़े जो सबसे सख्त दुश्मन, वो भी जो है वो आके सुनते। ये फैसला हुआ कि भाई इसको रोकना है, तुम मोहम्मदी का किस्सा खत्म कर दो। लेकिन हमारे नबी खानदान के थे, बड़े नाम नसब वाले थे, काम आसान नहीं था। तो सबने हजरत उमर को कहा, उमर ये काम कर सकते, भाई उमर से कौन पंगा ले। बात तय हुई कि ठीक है। उमर भी उस वक्त अल्लाह नहीं बने थे, उनको भी जोश आया, तलवार लिए और थे ही सूरमा, ताकत के मालिक, नंगी तलवार लेकर घर से निकल। गुस्से में लाल पीले कि आज जो है हम अपनी सरजमीन से इस किस्से को खत्म कर देंगे कि आज घर घर पर कुरान सुनने वाले और पढ़ने वाले मिल रहे हैं। लेकिन शिकार करने आए थे, आए थे किस लिए से कि आज इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे। क्या पता था कि यही कुरान के सबसे बड़े दाई बन गए। उससे में लाल पीले होकर जा रहे थे। एक सहाबी हजरत नुआइम नीले गांव पर कहा कर रहा था, पता है ऐसी सी बात है, आज उनका किस्सा तमाम करने जा रहा हूं, उनको खत्म करने। समझदार रहा, उनका भी उम्र से डायरेक्ट मतलब नहीं लेना ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में है, नंगी तलवार लटकाई जा रहे हैं, डायरेक्ट मतलब लेना चाहिए। तो उनका उम्र ठीक है, तुम जा रहे हो, लेकिन पहले तुमने अपने घर का हाल और अपने घर के बारे में जायजा लिया है? मेरे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम पता लगाओ, जब देखो तुम्हारे बहन बहनों क्या कर रहे हैं, उनके ताकि उनका गुस्सा हुजूर की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाए। जब दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, उस वक्त एक सहाबी हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों को कुरान की कुछ आयतें पढ़ते सुना। बहन ने आवाज सुनी, थे जलाली रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन जो उसने जहां लिख रखा था कुरान को फौरन छुपाया और हज़रत खब्बाब को छुपा दिया, उसको अंदर कर दिया। उसके बहनोई और बहन को सामने आए, क्या बात है, कैसे आए, और फिर गुस्से में हो उन्होंने उनको मारा, पीटा और बहन को मारा, बहनोई को मारा, अपना पूरा गुस्सा निकालना चाहा। लेकिन कुरान का वो जिस हिस्से पे, जिस तख्ती को ले, जिस चीज को कुरान लिखा होगा उस पर उनकी निगाह पड़ते तो कहते ये क्या है? उमर तुम नहीं सुन सकते, तुम नापाक हो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्ल किया उन्होंने, और जब कुरान पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अरबी जबान में कुरान है, अरब की मादरी जबान है, उनके लिए कुरान को समझना कुछ मुश्किल और नई चीज तो नहीं थी। जब उन्होंने कहा पढ़ा और पढ़ के अभी कुछ आयतें पढ़ी थी, पुकार थे, इतना शानदार कलाम और इतना अहम कलाम, जाहिर सी बात है किसी पैगंबर की जबान से ही आ सकता है, और ये कलाम, ये कुरान झूठा नहीं हो सकता। और उसी वक्त से, उसी लम्हे से उमर, हजरत उमर हो गए रज़ियल्लाहु अन्हु और रज़ियल्लाहु हो गए, और ऐसे हुए कि उस वक्त से लेकर आज तक तमाम बातिल पैदा हुआ है और तमाम बातिल
इस्लाम और आदा इस्लाम का नाम सुन के तस्वीर, क्योंकि वो कुरान को समझने वाले थे, इसलिए उनकी जिंदगी यक बयक बदल गई। आज हम कुरान पढ़ते हैं, इतनी इसकी तिलावत सारे साहब ने की, लेकिन हमारे बेटे वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे थे, टहलने वाले टहल लेते, उस कुरान ने हमारी तस्वीर पर कुछ असर नहीं। इसलिए भाइयों, कुरान का असर लेने वाला बने, कुरान को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से लगाव नसीब फरमाए। तो आप